गोल्डी मसाले। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल और सीएम योगी ने किया भव्य स्वागत। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से राहत, बुलडोजर कार्रवाई व आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक। 25 सितंबर तक बाराबंकी के डीएम करेंगे निस्तारण। टीटी की अनिवार्यता को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए यूपी में शिक्षकों का विरोध। अक्टूबर में दिल्ली करेंगे कूच, देश भर के शिक्षक जंतर मंतर पर देंगे धरना। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों ने मांगी मदद, सीमावर्ती जिलों से पीएससी बेचने का फैसला। नेपाल से वापस आने के लिए गुहार लगा रहे भारतीय नागरिक। त्योहारों पर यात्रियों के लिए रोपवे का बड़ा फैसला। 28 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। न्यू जलपाईगुड़ी से गोमतीनगर तक साप्ताहिक स्पेशल। यूपी के तराई इलाकों में मानसून दोबारा सक्रिय। मौसम विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। We had the privilege, as you know, welcoming Prime Minister Narendra Modi for our 57th anniversary of independence. And during this visit, it is during this visit that Modi ji elevated our bilateral relations to a higher level with the Mauritius-India joint document on enhanced strategic partnership. I'm glad now to affirm that our ties now have entered an even more dynamic and forward-looking phase. The obvious issues that we discuss, including the double taxation avoidance treaty, which we think can be improved, but we'll see how things go. And also for the training, for the whole structure of training in our police force. It's very important that we get this training. Our police do come to India for training, but we want to look at the whole structure. As the heart of this visit were very constructive discussions, but we also spoke of the surveillance of the vast exclusive economic zone after we acquired, we'll go through Parliament, I think, in a few days. We need technical cooperation from India. We need the surveillance. We don't have the capacity for surveillance. And also we want to visit the Chagos to put our flag there, including Jogwasha. We wanted to have a vessel. The British offered us, but we said we prefer to have one from India because symbolically it would be better. Beyond bilateral issues, Prime Minister Modi and I held deep exchanges on pressing global challenges. As I said, also maritime security, but also climate change, and we will continue to work together. These discussions have culminated in the signing, you've just said, of several memoranda of understanding in the fields of community development, power, energy, science and technology, research, education, marine science and space research, which will guide and strengthen our cooperations in the years ahead. Another highlight has been the high-level business meeting held 2 days ago in Mumbai, which brought together the captains of industry, and it was very fruitful because there's eagerness, because I've told them that don't forget we have preferential access to a lot of markets in Africa. We are a member of SADC, we are a member of COMESA, and we are a member of the African Union. But especially with SADC, there's a lot of double taxation agreement treaties which India business people can also benefit. It will be a win-win situation. वाराणसी से आप सुन रहे थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम को। वापस से रुक करेंगे अपनी खबरों की ओर। बरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 लोगों में हुई कहासुनी पर गोलियां चल गई। मोटरसाइकिल सवार और ऑटो चालक के बीच कहासुनी की बात सामने आई है। ऑटो चालक बिहारी सोनकर ने साथियों के साथ मारपीट किया। मारपीट के दौरान गौरव गोस्वामी को गोली लगी, मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 8 नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बारादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट चौराहे के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
कल रात्रि लगभग 12:30 बजे गौरव गोस्वामी सन ऑफ छोटे लाल निवासी विशारतगंज अपने 2 भाइयों व 2 दोस्तों आकाश व लक्की लभेड़ा इनके साथ खाना खाने गया था। होटल से वापस लौटते समय सैटेलाइट चौराहे के पास में एक ऑटो रिक्शा में बैठे कुछ लड़कों के साथ में इनकी कहासुनी हो गई, जिसमें बिहारी सोनकर नाम के लड़के ने अवैध तमंचे से गौरव गोस्वामी के ऊपर फायर कर दिया। मजरूब की अस्पताल में मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना बरादरी में एफआईआर संख्या 1067/25 धारा 190, 191(2), 3, 115(2), 351(2), 352, 109 व 103(1) अंतर्गत बीएनएस इसमें पंजीकृत की गई है। इसमें 8 अभियुक्त हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: नैतिक सोनकर, बिहारी सोनकर, अनस टेम्पो चालक, राजा, अभय, शेखर, समीर व चंदन। एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं इनकी गिरफ्तारी हेतु एसओजी समेत 3 टीमें लगातार दबिश में हैं। इनको ही जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकरण में कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बरेली से खबर है, जहां पर बहेड़ी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में मामूली कहासुनी के बाद बड़ा विवाद। मृतक शानू का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। अस्पताल ले जाते समय मृतक शानू ने दम तोड़ा था। बहेड़ी के मधुर मलन बैंक्वेट हॉल में हुई थी कहासुनी। बड़ी जानकारी बरेली से आपको बता रहे हैं। मृतक शानू का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। Gemini app. आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। नोएडा में वाहन चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहलोलपुर पुलिस के नाक के नीचे चोरी की घटनाएं। चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम बहलोल पुलिस चौकी। 2 शातिर चोर मोटरसाइकिल चोरी करते हुए फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र बहलोलपुर चौकी अंतर्गत पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे चोरी की घटनाएं, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से जुटाई जा रही गिरोह की जानकारी। आरोपी से 20 इंडियन स्टार टॉर्टाइज और ट्रेन से विभिन्न राज्य भेजे जाते हुए कछुए नेपाल तक की जाती थी जीव तस्करी। आरोपी के बरामद मोबाइल की जांच जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसटीएफ आरोपी विशाल मिश्रा से कर रही पूछताछ। आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रयागराज से खबर है जहां पर छात्र की कक्षा में पढ़ने वालों ने की हत्या। साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों पर हत्या का आरोप। फरार बताए जा रहे दोनों आरोपी सहपाठी। पिता ने शिक्षक पर हत्या करने का लगाया आरोप। शिक्षक और पीड़ित पिता के बीच जमीन का विवाद था। पुलिस विभिन्न एंगल से कर रही मामले की जांच। यमुना पार करचना क्षेत्र का है हत्या का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर है जौनपुर से जहां पर मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के खैरुद्दीनगंज में डीसीएम की चपेट में आकर साइकिल सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल 13 वर्षीय धीरज पुत्र रुद्र को आनंद फानन में सीएचसी पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी हालत में सुधार न होते देख किशोर को वाराणसी रेफर कर दिया है। गाजियाबाद में पूर्णिया एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में आग लग गई। आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी स्पेशल ट्रेन। साहिबाबाद स्टेशन पर कोच में आग की जानकारी हुई। एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज यान से उठ रहा था धुआं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। कोई जानहानि नहीं है। जीआरपी व आरपीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। वो अंदर कैच लगा होगा ना, अंदर कैच लगा होता एक। हम लोग चले जाए क्या? वो अंदर कैच लगा होगा ना, अंदर कैच लगा होता एक। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर एटा से है जहां पर जिले के धूमरी चौकी क्षेत्र स्थित कस्बे के मार्केट में बीती रात एक भीषण धमाका हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दुकानों में चोरी छिपे रखा गया विस्फोटक अचानक तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर दौड़े। धमाके के बाद दुकानों से आग की भीषण लपटें निकलने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई है। कानपुर में स्कूली बस ने पिता पुत्र को टक्कर मारी। छात्र छात्राओं से भरी बस ने पिता पुत्र को टक्कर मारी है। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर बस पलटी। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। बस पलटने के बाद बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सार थाना क्षेत्र के गोपालपुर बंबा के पास की पूरी घटना सामने आई है।
तुम थे गाड़ी पे? अगली खबर मेरठ से है, जहां पर बलात्कार पीड़िता की थानेदार ने नहीं लिखी एफआईआर। तहरीर लेकर पीड़िता को डरकाते रहे थानेदार। डीआईजी से मिली पीड़िता ने थानेदार की करतूत बताई है। डीआईजी के आदेश पर थानेदार दरोगा निलंबित। एसएसपी मेरठ का मुंडाली थानेदार दरोगा पर एक्शन। थानेदार दिव्य प्रताप सिंह, दरोगा रोहित बाबू निलंबित किए गए हैं। मेरठ से अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे। कौशाम्बी में सीएम डैशबोर्ड में कौशाम्बी पुलिस को मिली 5वीं रैंक। पुलिस ने प्रदेश के 75 जनपदों में 5वीं रैंक हासिल की। एसपी राजेश कुमार के प्रभावी मार्गदर्शन में 5वीं रैंक की बात सामने आई है। पुलिस की बेहतर कार्यप्रणाली का परिणाम मिला है। कानून व्यवस्था में कौशाम्बी का नाम प्रदेश स्तर पर चमका है। आधिकारिक बाइट के साथ भेजिए। बाइट कर लीजिए। आधिकारिक बाइट के साथ भेजिए। बाइट कर लीजिए। टीवी अबे यार भाई मूड लगा। खबर है बिजनौर से, जहां पर गंगा बैराज रावली के पास कटान से तटबंध और उसके ऊपर बनी पक्की सड़क पानी के बहाव में बह गई। तटबंध के कटान होने के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर सिंचाई विभाग, एनएचआई और प्रशासन की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। तो वहीं तटबंध को बचाने के लिए पेड़ों को काटकर पत्थरों को तटबंध पर रखने का काम शुरू कर कटान को रोकने का प्रयास लगातार जारी है। सैकड़ों मजदूर, कई जेसीबी, पोकलेन और अधिकारियों समेत ग्रामीण भी बांध को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो वहीं मौके पर प्रमुख अभियंता बाढ़ नियंत्रण AK सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। सड़क पर बैठने का मामला यही है, जैसे कि गांव में आक्रोश था। 10 दिन में ये तीसरा हमला हो चुका। तीसरी जान हमारे बीच में से हमारे धी बेटे की चली गई, जिसके बावजूद भी प्रशासन के सिर पे और कान में कोई रूह नहीं देखती ना। तो भाई अभी तक वन विभाग का कोई अधिकारी आया है। अधिकारी इस टाइम चाहे तुम लगाओ डिप्टी रेंजर ठीक, अपना फॉरेस्टर, SDO, DFO तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच। मेरा मानना, पहली मांग तो ये है कि ये सारे अधिकारियों की आज ही रात को अगर जांच हो जाए, ये सब दारू पिए हुए पड़े हैं। खबर है हापुड़ से, जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित नगर कीर्तन शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यह ऐतिहासिक यात्रा 21 अगस्त को असम से शुरू हुई थी और विभिन्न राज्यों से होती हुई 9 सितंबर को गढ़मुक्तेश्वर पहुंची, जहां गुरुद्वारा चौपला में इसका रात्रि विश्राम हुआ। 10 सितंबर की सुबह यह यात्रा गुरुद्वारा साहिब गढ़मुक्तेश्वर से आरंभ होकर सिंभावली, शुगरमल, कुचेसर, चौपला, बाबूगढ़ होते हुए हापुड़ पहुंची। ततारपुर बाईपास स्थित गुरुद्वारा पर SJS मोटर्स और हापुड़ की समूह संगत ने श्रद्धा और उत्साह के साथ नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया।
संगत जी बेनती है कि अपने मोबाइलों से पर्दा का आसाम से चली थी और 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में ये नगर कीर्तन आज यहाँ सिंधौली पहुँचा है और ये आनंदपुर साहब तक पहुँचाएगा और सभी संगतों ने आज दर्शन किए हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी पर बसाए हैं। आज पूरे क्षेत्र की सिंधौली क्षेत्र की गढ़ क्षेत्र की संगतों ने आज दर्शन करके अपने आप को खबर है कन्नौज से, जहां पर जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जिले के गंगा किनारे बसे 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। खेतों में पानी भर गया, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ग्रामीणों को बड़ी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। सपा के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक की अगुवाई में ये राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित गाँव में पहुंचाई गई है। आज जनपद कन्नौज के अंतर्गत कटरी क्षेत्र के इलाकों में कई गांवों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम लोगों का दौरा समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आज इस क्षेत्र में आए हैं। इस क्षेत्र में लगातार गंगा के जलस्तर और काली नदी के जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में घुस गया है। लोग यहाँ पे लगातार पलायन करने पे मजबूर हैं। यहाँ पे खाने पीने की समस्याएं हैं, लोगों को रहने की समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि जो भी मदद पीड़ितों की हम लोगों की पार्टी के माध्यम से हो पाए वो त्वरित तरीके से करी जाए। और लगातार हमारे जो कार्यकर्ता नेता हैं इस समस्या में लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोग कल जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए थे, उनको अवगत भी कराया, लेकिन प्रशासन ऐसी बड़ी भयावह जो बाढ़ आई है जिससे लगभग 10 से 20 हजार लोग प्रभावित हुए हैं, फिर भी प्रशासन और इतनी गहरी नींद में सो रहा है क्योंकि उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन यापन किस तरीके से प्रभावित हुआ है। अड़ियापुर पड़ता है जो गांव, उसके पास में हम लोगों ने गाड़ियां अपनी छोड़ी हैं। वहां से पैदल और ट्रैक्टर से माननीय विधायक अरविंद सिंह यादव जी, पूर्व विधायक कल्याण सिंह जी, यश दोहरे जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष व पार्टी के सभी सम्मानित बड़े नेता, हम सभी लोग ट्रैक्टर के माध्यम से और पैदल चलकर कई गांव का हम लोगों ने आज राहत सामग्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कई टोलियां बनाकर हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के लिए हम लोग निकले हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।